student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation, and the topic is Maharashtra Cooperative Societies Act 1960. You have to similarly refer the PDF which will be available in your WhatsApp group. So here first one is the registration, that is the registration of the cooperative society. Registration of the cooperative society is mandatory and it is as per the guidelines given by the Maharashtra government. Some guideline given by the central government and some guideline given by the Maharashtra government, and it is registered as per the Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960, and the registration of the society is mandatory to all the cooperatives, and it is binding to follow the rules, regulations framed by the state government, that is the Maharashtra government, as far as Maharashtra state is concerned. So the first one is the registration. The registration may be optional as the limited liability or unlimited liability. As we discussed earlier that in case of limited liability, the liability of the members is limited for his shares only. His personal asset is not taken into consideration for any payment or payment of liability. But as far as the unlimited liability is concerned, while making the payment, so the member's personal asset is also considered for payment of liability. So in Maharashtra, the maximum registration are under the limited liability clause. So there is optional that registration is limited liability or unlimited liability. That means registration is mandatory, compulsory, but it is optional for limited liability or unlimited liability. It depends upon the cooperative society. Second one is the amalgamation. That is the amalgamation, transfer, division or conversion. If there is amalgamation of the two cooperative society or transfer of cooperative society or division, that is the division of society into two cooperative society or conversion, so there is necessary decision is to be taken 2/3 of the majority of the members. That is the decision is to be passed regarding the amalgamation, transfer, division and conversion. A decision should be necessarily passed by 2/3 majority of the members. अगर सोसाइटी को अमलगमेट करना है, यानी दो सोसाइटी अमलगमेट करना है, या फिर एक सोसाइटी ट्रांसफर करना है दूसरी सोसाइटी को, या सोसाइटी का डिवीजन करना है, यानी एक सोसाइटी के अगर दो सोसाइटी करना है, या फिर सोसाइटी का कन्वर्शन करना है, तो जो भी मेंबर्स है उनके 2/3 मेजोरिटी में ये डिसीजन पास करना पड़ता है, तभी जाके ये पॉसिबल हो सकता है. और उसके बाद का पॉइंट ओपन मेंबरशिप. दैट as we discussed earlier that the members of the cooperative society is open to all. There is no discrimination regarding the caste, religion or any other, rich or poor. Membership is open to all. ओपन मेंबरशिप मीन्स मेंबरशिप सभी के लिए ओपन रहती है. अगर कोई भी पर्सन अगर उसकी इच्छा है तो वो मेंबर बन सकता है. अगर उसको लगता है कि मेंबर्स बनने के बाद मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए तो वो कभी भी मेंबर्स विड्रॉल कर सकता है. देयर इज नो बाइंडिंग ऑन द पर्टिकुलर पर्सन और नो कंपल्शन, नो मैंडेटरी फॉर द पर्सन टू ज्वाइन द मेंबरशिप और टू कैंसल दी मेंबरशिप. वो टोटली वो पर्टिकुलर मेंबर्स पर डिपेंड है कि वो मेंबर्स बनना चाहता है कि मेंबर्स बनना नहीं चाहता है, या जो मेंबर्स बन गया है वो अपनी मेंबरशिप छोड़ना चाहता है या नहीं छोड़ना चाहता है. और मेंबरशिप देते वक्त उसके कास्ट या फिर रिलीजन या फिर रिच या पुअर ऐसा कुछ भी ना देखते हुए पर्सन्स को जो है वो मेंबरशिप ऑफर की जाती है. वो उसकी इच्छा है कि वो चाहे मेंबर्स बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन मेंबरशिप ओपन रहती है. दैट मीन्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल. दैट सीजेशन ऑफ मेंबरशिप. मेंबरशिप कब सीज होती है? कई बार जो है पर्सन रिजाइन करता है मेंबरशिप से, तब
या फिर वो पर्सन की डेथ होती है तब, या फिर वो पर्सन खुद बोलता है कि उसकी मेंबरशिप को थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, तो ऐसे केस में जो है वो मेंबरशिप उसकी सीज होती है, बंद होती है। और अगर वो ट्रांसफर कर रहा है दूसरे मेंबर्स को, तो दूसरे मेंबर्स को ट्रांसफर होती है। अगर वो खुद रिजाइन कर रहा है, वो खुद बोल रहा है कि मैं मेंबरशिप छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। या उसकी अगर डेथ हो जाती है तो उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। नॉर्मल केस में उसकी मेंबरशिप खत्म नहीं होती जब तक वो खुद नहीं चाहता तब तक। उसके बाद में वोटिंग पावर, कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल ये है वन मैन वन वोट, दैट इज द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, कि हर मेंबर्स को उसके चाहे वो पर्टिकुलर सोसाइटी में कितने भी शेयर्स हो, वो चाहे फिर उसका कितना भी वो पर्टिकुलर सोसाइटी में वजन हो, वेट हो, लेकिन उसको एक ही वोट वो दे सकता है। जैसे कंपनी में होता है कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में जितने शेयर्स है उतने आपकी जो है वोटिंग पावर, उतने राइट्स आपको मिलते हैं, आपकी मोनोपोली होती है, कई बार आप ओनर हो जाते हो कंपनी के। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिल्कुल ही नहीं होता। यहाँ जो है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है, और जो भी वोटिंग पावर है वो वोटिंग पावर जो है वो हर मेंबर को उसके चाहे कितने भी शेयर्स हो उसको वो खुद एक ही वोट दे सकता है, और जो वोट उसको देना है वो उसको खुद जाके देना है, कोई प्रॉक्सी जो है वो प्रॉक्सी थ्रू वोटिंग नहीं करना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंबर्स के कितने भी शेयर्स रहने के बावजूद भी वो एक मेंबर एक ही वोट दे सकता है, इसलिए इसमें मोनोपोली या ओनरशिप जो है वो ओनरशिप नहीं रहती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है। सभी मेंबर जो है, अब सभी मेंबर्स तो खुद जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं देख सकते, इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से अपॉइंट करते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी डिसीजन लेते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कई साल तक रहेगा, या उसका इम्पैक्ट जो है वो मेंबर्स लोगों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा, ऐसे डिसीजन है, तो मेंबर्स लोगों को कंसल्टेशन के बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा इसलिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर डिसीजन ले लिया और बिना कंसल्टेशन, बिना मेंबर्स के कंसल्टेशन के ले लिया, तो मेंबर्स उनको कभी भी पूछ सकते हैं। इसलिए जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स लोग अपॉइंट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन के वक्त मेंबर्स लोगों की राय लेना वो पर्टिकुलर डिसीजन पे, तो वो इंपॉर्टेंट है। यानी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भी मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट से चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने लायक है। पहला तो रजिस्ट्रेशन, इसके पहले ही हमने डिस्कस किया था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोऑपरेटिव सोसाइटी रन नहीं हो सकती, और रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लायबिलिटी से हो सकता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी से भी हो सकता है, डिपेंड है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार का ऑप्शन चूज करती है। उसके बाद में अमल गवेषण देखा हमने कि अमल गवेषण, ट्रांसफर या डिवीजन या फिर कन्वर्जन, तो इसके लिए 2/3 मेजोरिटी में जो है वो डिसीजन की आवश्यकता होती है, उसके बगैर जो है ये प्रोसीजर नहीं होती है। उसके बाद में मेंबरशिप ओपन या ओपन मेंबरशिप सभी के लिए ओपन रहती है, उसमें कोई भी जो है वो भेदभाव नहीं होता है। जो मेंबर्स की इच्छा है वो मेंबर्स बन सकता है, जो पर्सन की इच्छा है वो पर्सन मेंबर बन सकता है। कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे उसको उसकी मेंबरशिप को नकारा नहीं जा सकता। उसके बाद में सिजेशन ऑफ मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप कब खत्म होती है, वो मेंबर्स अगर खुद बोलता है कि मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में उसकी मेंबरशिप सीज होती है, खत्म होती है। उसके बाद में अगर उसकी डेथ होती है तो वो सीज होती है उसकी मेंबरशिप, या वो खुद बोलता है कि उसकी मेंबरशिप दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दी जाए, तो ऐसे केस में उसकी मेंबरशिप जो है वो खत्म होती है। और उसके बाद में वोटिंग पावर देखा हमने कि एक मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक ही वोट दे सकता है, उससे ज्यादा वो वोट नहीं दे सकता है। तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो है ये बेसिक जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है, और डिटेल जो है इसका जो भी आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, तो पीडीएफ में आप जो है इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।